Hello everyone, welcome back to my channel Just Coded with Sarthak. So today I am back with another amazing video for you guys, and this time I have brought guest Aman from Microsoft. So Aman is at L60 software engineer at Microsoft, and he is going to explain all about the perks, the work-life balance, the different benefits you get at office as well as in the work from home situation. What has been his experience with regards to the culture with respect to his managers, with respect to the different benefits that are available as a Microsoft employee, and he will all explain in this video. So he will be bringing out all the knowledge that he has gathered right now. What are the different perks that are in terms of cash benefits or non-cash benefits? They could be something like learning benefits. There are some benefits in terms of what are different kind of leaves available, what are the different value, the perks and the different amazing things that are available at campus area. What is he is from Hyderabad campus, so he will be telling about what are the different amazing things he has done before pandemic at least. Before starting with the video, let's thank the supporter of this channel, Newton School. So guys, what is Newton School? Newton School एक edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offers from these top tech companies, and उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. They have very good offerings with this course, live classes, industrial projects, mock interviews, and personal mentoring. I will put the link in the description, and I suggest you all to check this out and explore their courses. Hello everyone. So I am back with Aman. We will be discussing a lot of things that were supposed to be discussed. So आप जानते ही होंगे Aman is from Microsoft, and we have prepared a long list questions for him for a lot of what Microsoft employee gets and what are the different perks. And I am handing over this mic to Aman, and he will be starting with his introduction. Yeah, hi Aman. Hey, hi Sarthak. Hi Sarthak. Thanks for inviting me, bro. And those of you who don't know, me and Sarthak go way back, and we were in the same college, in the same branches. Yeah. So Right. we have been friends for so long. And actually, when Sarthak said I have a long list of questions for Aman, I started feeling nervous. I don't know what he's going to ask. And before Sarthak starts my interview, I would like to say something about Sarthak. So Sarthak के साथ क्या है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है एंड ही इज वेरी गुड एट आस्किंग क्वेश्चंस. जो प्रोग्राम मैनेजर टाइप के लोग हैं ये इनका काम है सताना. अगर कहीं पे ऐसा लगे ना कि ठीक है ही इज ट्राइंग टू आई मीन पुट प्रेशर ऑन मी, दैट्स फाइन. हां, बिकॉज़ ही इज प्रोग्राम मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब. राइट. तो ठीक है, काफी क्वेश्चंस आने वाले, काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, बट मतलब आई वांट एवरीवन टू बी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि बहुत नॉर्मल है क्वेश्चंस है, कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट. कोई रिजेक्शन नहीं आने वाला है, बच्चों का लाइक ही आएगा इसके बाद. ठीक है. तो yeah, starting with the interview part, so first question would be like how long you have been in Microsoft, and like what's the work culture there? So I've been in Microsoft for a year now. Actually, October 12th was my joining date. So it's September. So it's kind of 12th month. Mhm. And yeah, before that, I did a 2 months internship at Microsoft. So that's like the whole time I've been in Microsoft. For this whole period, this whole year, when I joined as a full-time employee, I've been working remotely from my home. But earlier, I went to campus during my internship. So Okay. that's like Okay, so not a very long experience, but yeah, yeah. so earlier, congratulations for completing your 1 year. But before starting, so we wanted to discuss कि what हमने बहुत तारीफ सुनी Microsoft की, क्योंकि Microsoft में बहुत perks ही perks हैं. So we just wanted to discuss what are the various perks and which one you like the most. Okay, so perks की बात करते हैं. I'll start with the ones I like the most. ठीक So है. सबसे पहला perk है जो employee stock purchase options हैं. That's different from employee stock options that we get while we are hired. So as a Microsoft employee, I can buy Microsoft share. Correct. So ये है. इसके अलावा हमारे पास पहले एक स्टे फिट करके पॉलिसी हुआ करती थी, स्टे फिटनेस करके लास्ट ईयर तक.
जिसमें हमारा 19K के अराउंड बजट होता था। उसमें हम फिटनेस रिलेटेड कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जिम ज्वाइन करना हो गया, आउटडोर गेम्स प्ले करना हो गया, जूडो टाइकोंडो ऐसे गेम सीखना हो गया, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फिटनेस, तो वो हम कर सकते थे। 19K उसकी लिमिट थी और वो पैसा हमें रीइंबर्स हो जाता था। सो तो ये 19 बेसिकली के होता आप था कोई भी इस। कोच, कोई भी जिम फिटनेस, कोई भी बेसिकली डाइटरी फिटिशियन, कोई भी अपने लिए आप एलोकेट कर सकते हो और 19,000 तक आप इजीली स्पेंड कर सकते हो। हाँ, सही। but actually the thing is this year it has been changed to 30K from this year onwards. ओह So अब वो लिमिट 30K है, मतलब this year से। So हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट का ये जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। So this fiscal year, starting from this fiscal year onwards, we are getting it as 30K और उसका नाम बदल के Perks Plus कर दिया। But Okay. best part is उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बढ़ा दी। मतलब basically you can buy books. I mean 3 पार्ट्स हैं उसके, physical fitness, mental fitness and financial fitness. ओके। ये तीनों कवर होते हैं पर्क्स प्लस में, जो पहले स्टे फिट के नाम से आता था। हम्म। तो अभी मेंटल फिटनेस में आ गया, बुक्स खरीदो, मेडिटेशन प्रोग्राम्स खरीदो, इस टाइप की चीजें सारी रिइंबर्स हो जाएंगी। फाइनेंशियल फिटनेस में आ गया, आप किसी टैक्स कंसल्टिंग फर्म से हेल्प लो या फिर आई मीन इस तरह के कोई कोर्सेस करो फाइनेंशियल रिलेटेड, वो सारे रिइंबर्स हो जाएंगे। और फिजिकल वाले में इस बार उन्होंने जूते, स्पोर्ट्स ड्रेस वगैरह, स्पोर्ट्स शूज वगैरह ये सब डाल दिया। मतलब अच्छा। ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर दिया उन्होंने, जो आप मजे करने के लिए करोगे। स्विमिंग सीखो, बुक्स खरीदो, पढ़ाई करो, घूमो फिरो, खेलने जाओ, किसी क्लब को ज्वाइन कर लो, टीटी रैकेट खरीदो, बैडमिंटन रैकेट खरीदो, सब उसके अंदर। इनफैक्ट एयरपोर्ट्स भी हैं, अभी मैंने ऑर्डर किए हैं। अभी मैं ये हेडफोन हटा के कल मैं एयरपोर्ट पे शिफ्ट होने वाला हूँ, अभी आए नहीं है। अरे नाइस। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट चाहता है तुम फिजिकली फिट रहो और अपना मेंटली भी फिट रहो ताकि अच्छे से काम करो। और जहाँ पे टेक्स्ट का अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उसके लिए भी तुम मत सोचो, माइक्रोसॉफ्ट विल पे फॉर यू टू टेक केयर कि आप अपने फाइनेंशियल चीजों का स्ट्रेस ना लो, वो भी कोई और टेक केयर कर लेगा। लाइक जस्ट पे एंड एंजॉय एंड रिलैक्स। राइट। And the best part is ना, you are not getting it as salary. I mean salary भी बढ़ाई जा सकती है 30K, but that would not change my mind, my perspective for Microsoft. It's Correct. actually ये पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप इन चीजों में इंडल्ज होगे। राइट। Correct. So eventually I have to do something to that side, है ना। अब जिम ज्वाइन तो कर ही लेते हैं यार, जिम नहीं तो चलो जिम मान लिया कि थोड़ा मेहनत का काम लगता है। स्विमिंग, आई मीन लर्निंग अ स्पोर्ट में भी, टीटी सीखना, बैडमिंटन सीखना, ये तो पक्का किया जा ही सकता है ना भाई। नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए तो इंसान सीख भी लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली रिइंबर्समेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है, तो अगर जब तक आपने यूज नहीं करा तब तक आपको कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। करेक्ट है, ठीक है। नाइस। तो इसके अलावा वही जो मेडिकल इंश्योरेंस आ जाता है अपना, तो सभी प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हल्के लेवल पे ये है कि आप नॉर्मल आपकी सैलरी का, जो आपकी बेस सैलरी है उसके 3 टाइम्स कवर मिलता है आपको। ये लाइफ टर्म इंश्योरेंस जो बता रहा हूँ मैं, मतलब एम्प्लॉय की डेथ के केस में 3 टाइम्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वही हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उसका कवरेज डिफॉल्टली कुछ 5-10 लाख मिलता है, फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। वो बहुत मिनिमल अमाउंट लेते हैं, तो उसको जितना चाहो बढ़ा सकते हो। इसमें कवर कौन कौन होता है? एम्प्लॉय के पेरेंट्स, स्पाउस एंड किड्स। अच्छा। और आप चाहो तो अपने स्पाउस के पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट यू हैव अ चॉइस कि आप या तो स्पाउस के पेरेंट्स इंक्लूड करो या अपने पेरेंट्स। इस तरीके का है, बट काफी अच्छा प्रोग्राम है और मतलब यूज करते हैं हम लोग, काफी सही है वो। जितना वो डिफॉल्टली भी प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज्यादा है। राइट। इसके अलावा आप मान लो जो नॉमिनल डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल खांसी जुकाम या व्हाटएवर यू गेट ऑन अ डे टाइम, मतलब ऐसा हुआ जिसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ा, तो वो भी एक लिमिट तक रीइंबर्स हो जाता है, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड अमाउंट। नाइस। वो भी काफी सही लगता है मुझे। हाँ, मतलब एक्चुअली साल भर से फिंगर्स क्रॉस्ड मेरा कोई मेडिकल बिल नहीं आया। आई होप ऐसा ही रहे, टच वुड। टच वुड अगेन, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो वो पैसा मुझे मिल जाता है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पेरेंट्स के पास है तो आप वही इंश्योरेंस पॉलिसी अपने स्पाउस को खुश रखने के लिए उनके पेरेंट्स के लिए परचेज कर सकते हो। एंड ऑन द सेम डे आपके जो छोटे मोटे खर्चे कि खांसी जुकाम के लिए आपको डॉक्टर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ओपीडी वाले सारे कवर होंगे। करेक्ट है। आई होप कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ बेनिफिट देता होगा। एक्चुअली इंडिया में नहीं है यार, वो यूएस में ही है बहुत ज्यादा। मतलब यूएस में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट पे भी पर्क्स हैं। हमारी एक वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, वहां मैं चेक कर रहा था, इंडिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी। मतलब हमारे स्टोर्स हैं जहाँ पे सस्ती चीजें मिल जाती हैं बाहर के एम्प्लॉयज के मुकाबले, बट या एज पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई बहुत ज्यादा हमें मतलब प्रोडक्ट्स वाइज बेनिफिट नहीं मिलता। इन द सेंस मैं एक्सबॉक्स खरीदना चाहूँ तो नहीं मिलेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर पे आता हूँ, सॉफ्टवेयर वाले हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा। इनफैक्ट हमारे पोर्टल ही है,
तो जिसके अंदर मुझे क्या कहते हैं विंडोज की लगभग 50 कीज मिली होंगी, ऑफिस की कीज मिली होंगी, ओके इस तरीके की, मतलब जितने भी विजुअल एक हमारा प्रोडक्ट है व्हिच आई थिंक कॉस्ट अराउंड 40K, तो उसकी कीज पड़ी हुई है दैट आई कैन यूज फॉर माय पर्सनल रीजंस आल्सो, क्योंकि मेरे ऑफिस सिस्टम में तो सब इंस्टॉल्ड है। ऑसम। तो जिस वो जिसको सारी भाई चीजें माइक्रोसॉफ्ट की कीज चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो, अमन आपको पर्सनली वो कीज देने वाला है। So, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम कर रहे हैं, अगर अमन के पास कीज होगी तो पक्का आपको मिल सकती है। certainly हाँ। और ये सबके लिए है, कोई भी, इनफैक्ट व्हेन आई वाज इंटर्न दैट टाइम आल्सो आई हैड दिस ऑप्शन, so it's basically a portal where I have to claim keys for, I mean, whichever product you want, whichever software product you want, be करेक्ट। it Windows 10, Windows 8, XP, Visio, Office or anything. सो बेसिकली That's अगर आप actually good. माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉई हो तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की तो कीज रहेंगी। इवन इफ यू हैव अ फ्रेंड हु इज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट साइड ऑफ थिंग्स से बहुत फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, राइट? तो मतलब आप भी खुश रहो, आप अपने दोस्तों को भी खुश रखो, ये माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी। हाँ, Xbox नहीं देते, बस मुझे दुख है। Xbox और सस्ता मिल जाता तो मजे आ जाते। Xbox का गेम पास दिया था उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल से साल भर का है या पता नहीं कितने टाइम का है। तो उसमें विंडोज में, इफ यू आर विंडोज यूजर अगेन, तो यहाँ पे Xbox होता है एक ऐप, आप लोगों ने यूज किया होगा, तो उसके अंदर हम की डाल के Xbox का ऑलमोस्ट कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। ओह नाइस। मेरे पास तो इतनी हैवी मशीन है नहीं अभी, अदरवाइज मतलब मैंने ट्राई किया था, 30-40 जीबी की गेम्स ट्राई की थी अच्छी अच्छी, और मजा आया था खेलने में, और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। मे बी लेट्स टाइम इसके प्लस अलावा में डिजिटल गेम्स भी आ जाए तो Xbox आ सकता है। पक्का 30K में Xbox होता तो पहला काम वही था। लगा नाइस। लेते पॉकेट से, आ जाता तो मजा ही आ जाता। इसके करेक्ट। अलावा माइक्रोसॉफ्ट मतलब गिफ्ट्स वगैरह देने में काफी अच्छा है। सो मैं जब से हूँ 1 साल हुआ है मुझे, और हर ऑल्टरनेट मंथ कुछ ना कुछ आता ही है, मतलब एक मंथ छोड़ के तो मेरे पास कुछ ना कुछ आया ही है। मेरे पास लाइक 2-3-4 बैग होंगे विच आर लाइक प्रीटी गुड बैग्स, वो सस्ते वाले नहीं है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज गिविंग इट आउट। हाँ हाँ। बॉटल्स होंगी, पावर बैंक्स होंगे, टी शर्ट्स होंगी, मतलब एनीथिंग दैट यू कुड इमेजिन जो माइक्रोसॉफ्ट से मिल सकता है। इनफैक्ट मेरे कजन्स हैं जो मुझसे पूछते हैं ना कि तू माइक्रोसॉफ्ट क्या, मतलब क्या नहीं देता है तुम्हें, ठीक है, दे एक्चुअली ट्राई टू यूज सार्केज्म कि भाई सब कुछ तो उनका यूज करता है। अब ऐसा हुआ कि कोई आया भैया पावर बैंक दे दो, आई एम लाइक पावर बैंक माइक्रोसॉफ्ट ले लो। अच्छा। सही है, तो आपके पास काफी स्वैग्स और मर्च होते हैं जो हर हर मंथ या हर ऑल्टरनेट मंथ कुछ ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉइज को देता रहता है। सर्टेनली इसके अलावा जैसे न्यू ईयर था हमारा अभी इंडिया का, मतलब वर्ल्ड वाइड जो न्यू ईयर था हमारा क्या, अच्छा। तो उसमें हमें Amazon वाउचर्स मिले थे, ठीक है, 5-10,000 के। अभी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जैसे मैंने बताया जो एनुअल ईयर होता है वो जून में खत्म होता है, तो 1 जुलाई को हमें 12-15,000 के कूपन्स मिले थे, Amazon वाउचर्स मिले थे, तो वो सारे पड़े हैं। तो वो भी मतलब इस तरह की चीजें, अगेन ये इसको ना मॉनेटरी टर्म में नहीं जोड़ना चाहिए, जो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। आप ये सोचो ना कि अगर वो शायद 1 लाख रुपए ज्यादा दे देंगे ना मुझे सैलरी पे, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं मतलब ध्यान भी नहीं दूंगा। बट ये जो सडन गिफ्ट्स आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट या मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है, कुछ ना कुछ आता रहता है घर में। हाँ, तो जो सैलरी आपको आए कमिट करी वो बॉक्स तो कोई, सैलरी है, उसके ऊपर पर्क्स आपको भर भर के आते रहते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। घर वाले भी खुश रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट भेजती रहती है सबके लिए। हाँ, अभी ये कोविड टाइम था तो पूरा हेल्थ किट ही भेजा था, मतलब उसके अंदर क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द डिवाइसेस नेम्स, होता है ना हार्ट बीट वगैरह, SpO2 मेजर करने वाले, हाँ 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 और हाँ। इस तरह के सारे डिवाइसेस भेजे थे उन्होंने, तो दैट्स प्रीटी गुड। हम्म। इसके अलावा आई थिंक वो आपकी ऐसा, लर्निंग के लिए भी काफी कुछ सपोर्ट करते हैं ऐसे। हाँ लर्निंग के लिए करते हैं। लर्निंग से पहले एक और बेनिफिट मेरे को याद आया, अभी जैसे हम्म माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बोनस दिया था $1,500 के राउंड, कि यार कोविड बोनस विच वाज अगेन नॉट कमिटेड टू अस, विच केम एज अ सडन ईमेल, हाँ। एंड वो मुझे सैलरी से बहुत ज्यादा खुशी दे रहा था। यार घर बैठे 1,10,000 रुपए आएंगे तो क्यों नहीं खुशी देंगे, क्यों नहीं खुशी एक मिलेगी, सडन सही। मेल आता है। और वो इसलिए मिला था कि यार कोविड टाइम्स है, कोविड टाइम में आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप लोगों ने बहुत काम किया है, तो इस वजह से हमें दिया गया था। एंड अगेन when you get something which you are not expecting ना, खुशी ये लगाती है। सही बात मतलब है। वो मेल आया और आई एम कॉलिंग माय फ्रेंड्स, पता देखो कितने पैसे आए। तो बेसिकली एक छोटा सा बोनस ही क्यों ना हो, मतलब ऑल्दो छोटा नहीं है, 1,10,000 इज वेरी ह्यूज अमाउंट, बट आपको एक बोनस मिलता है तो आपको बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि सैलरी से हट के, सैलरी तो कमिटेड है, वो तो 30 डेज वर्क करेंगे, 30th को आनी ही आनी अकाउंट में, लेकिन एक आनी समथिंग आनी रैंडम मेल जिसमें कुछ पर्क्स या कुछ ऐसी चीज मेंशन होती है तो काफी खुशी मिलती है। हम्म। लर्निंग्स की जैसे आप बात कर रहे थे साथ, तो अभी हमारे जो अगेन प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी बुक्स भेजी थी, राजीव कुमार हैं जो हमारे सीनियर,
अच्छा तो उन्होंने 7 या 9 बुक्स का सेट भेजा था हमें, विच वाज एक्चुअली वेरी गुड। और बेस्ट पार्ट क्या थी उन बुक्स की, वो ना उसमें से कुछ स्टार्टअप की बुक्स थी 3-4, अच्छा and I'm like, a corporate leader is promoting us to read startup books. I mean, that was something that I was not expecting, हम्म because I mean, it represents that they are also promoting the growth culture. Actually, there is a word which we use at Microsoft which is called growth mindset. Growth mindset versus fixed mindset. So fixed mindset is actually, if let's say I'm stuck at something, then I'll be like, यार ये नहीं हो रहा है, या मैं problems avoid करूंगा, which is not actually going to give me happiness. On the other hand, करेक्ट what is growth mindset? It's actually, अगर मैं कहीं फंस भी रहा हूँ ना, तो eventually I'm going to learn something out of it, which is something that I actually really like. राइट तो सो हमारा बेसिकली जो एनुअल इंक्रीमेंट है, कनेक्ट वगैरह होता है, वो उसमें फिक्स ग्रोथ माइंडसेट पे बहुत प्रमोट किया जाता है कि हाँ यार ये चीज को बहुत देखा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट खुद भी ग्रो करती है और दूसरों को भी ग्रो करने के लिए पुश करती है। दे डोंट फियर दैट कि एम्प्लॉइज खुद का स्टार्टअप कर लेंगे तो हमें छोड़ के चल जाएंगे, देयर विल बी अ लॉस और समथिंग लाइक दैट। दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे केयर फॉर देयर एम्प्लॉइज ग्रोथ एज वेल। करेक्ट। सर्टेनली इवन हमारा मंथली डे ऑफ लर्निंग होता है, इस फ्राइडे है मेरा, जिस अच्छा पूरे फ्राइडे वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग आउट, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग। और लर्निंग भी ये नहीं कि उन्होंने कोई कोर्स दिया है मुझे एंड दे विल आस्क मी कि भाई क्या पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। यू स्टडी इट योरसेल्फ, ठीक वाह है। योर सीनियर्स और मैनेजर्स आर नॉट गोइंग टू आस्क व्हाट यू स्टडीड एट दैट डे, व्हाट यू डिड एक्चुअली दैट डे, but it's actually a day of learning and there will be no meeting on that day. नाइस, वेरी नाइस। Yeah, and we actually get a Amazon Kindle subscription, यानी Kindle device नहीं, जो Kindle online books वाली है, Kindle app download करके, तो we have a Microsoft library and we can actually get any book as a loan for 20 days, and they have a lot of books. I have actually took a loan, मतलब loan लेने का मतलब basically है कि 20 days बाद वो चली जाएंगी, but 20 अच्छा days is enough time if you are going to read a book. So that's हाँ, also इफ यू आर अ something that रीडर I तो like. आप 20 डेज में काफी कुछ खत्म कर सकते हैं, काफी बुक्स पढ़ सकते हैं। राइट। इसके अलावा दे प्रोवाइड अस ऑनलाइन साइट्स, फॉर एग्जांपल एक प्लूरल साइट है करने के लिए। प्लूरल साइट, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर, एक्चुअली दोज हु आर वाचिंग इट, प्लूरल साइट एज पर मी इज द बेस्ट प्लेस फॉर एनी डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज दैट यू वांट टू लर्न। आई मीन इट्स द बेस्ट राइट नाउ, इट्स राइट। द बेस्ट। वहाँ के जो उनके जो ऑथर्स हैं, दे अर्न अराउंड $1 million, दैट्स व्हाट आई रेड समवेयर इन एन आर्टिकल। So ओह if something is earning $1 क्रेजी। million just by creating a course, it's like really good. And even I've studied it. It's like damn good. वो हमें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा। लिंक्डइन लर्निंग वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा और भी 8-10 वेबसाइट्स हैं which I actually never looked on to that much, but yeah, वो सारी अवेलेबल हैं हमारे पास। सो So that's बेसिकली actually something लर्निंग that के I ऊपर like. काफी पुश रहता है माइक्रोसॉफ्ट का कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, सीखते रहें। एंड दोज ऑफ यू डोंट नो, बेसिकली लिंक्डइन इज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सो लिंक्डइन लर्निंग के लिए तो काफी पुश रहेगा, राइट। बट एनीवेज दे डू नॉट restrict themselves to LinkedIn learning. काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल्स, यू कैन गो टू Pluralsight साइट एंड अदर कोर्सेज अवेलेबल। और इसके अलावा we get money for higher studies. So basically, if we can convince our manager that I can manage my work with my higher studies, then I can pursue higher studies also, and Microsoft will pay for it ओके to a certain extent, and that's actually very good amount. So मेरे काफी सीनियर्स हैं जो जॉर्जिया टेक से मास्टर्स कर रहे हैं, and Georgia Tech is like very good college, very good, very good. राइट। तो Yeah, अगर आपको so अपनी that's फर्दर what. स्टडीज करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा सपोर्ट कर रहा है। आप अपनी एमबीए, एमएस, कोई भी अपनी ग्रेटर डिग्री लर्निंग्स के लिए आप कॉलेजेस जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विल पे फॉर यू। लाइक इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि वो चाहते हैं कि आप पढ़े पर पैसे की चिंता नहीं। Exactly, and this is like something great. I mean, you love when you see a company is really caring for you that much. So what happened actually, Sarthak, last year is around November or December, I received a mail from my corporate vice president, and he said, "Here, it's end of the year. It's end of the year. You all should take some time off." And I was actually surprised to see that mail. I mean, why would a vice president of a private company is asking me to take some leaves, because that's something which is a productivity loss for the company. करेक्ट है। But you see the culture, how it's being promoted to the to the employees. So राइट। that's something which I have felt very emotional कि यार गजब है ये, तो मतलब मजा आ गया। So basically seniors have that integrity, that goodness that they want to promote कि यार हमें कल्चर अच्छा रखना है। We don't want to hamper like work life balance की थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल जाएगी अगर लोग यूज नहीं करेंगे लीव्स वगैरह। दे वांट कि अगर फेस्टिवल टाइम है, क्रिसमस, न्यू ईयर है, तो आप जल्दी से छुट्टियां ले, एंजॉय करें, थोड़ा स्ट्रेस को बर्नआउट को रिलीज करें। नाइस।
In fact, I'll tell you a story. So during my internship, what happened? There was a Friday evening in Mhm. which there was some little work left. और internship में ना हमें सबको लगा होता है PPU लग जाए, PPU लग जाए. Correct. So I actually sent an message of WhatsApp, a Teams message actually Mhm. around 6:30 p.m. that I was looking for some detail. So I sent it in my Teams chat, and what reply I got? It was Friday evening. That with respect to the awesome work, with respect to the work culture and awesome life balance we have at Microsoft, let's discuss this on Monday. Right. They did not want me to work on Friday evening or Saturday, Sunday. Actually, I went some of the Saturdays to the office during my internship just so I could complete my project early. क्योंकि Mhm. again लगा रहता ना यार PPU लग जाए. So Correct. my mentors got to know about it, and they specifically came to me and they tell me कि यार don't come this weekend ना. इस बार आया ना तो पक्का नहीं सिलेक्शन ले, पक्का नहीं PPU देंगे. So basically they want That- कि आप वर्क कल्चर को, जो वहाँ कल्चर है कि वीकेंड्स पे काम नहीं करना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें. Like they don't want higher मतलब productivity, they over want the culture to be embarked at every employee. Right. Yeah, and overworking, why do we promote overworking? I Mhm. mean, it's not good. Eventually, the point of my seniors was if you're working on weekend, it represents that you are unable to complete the work on your work days. It means you're Mhm. not a good employee. है ना? Right. You're not actually a good developer. So तो you आपको should जितना be able to डेजिग्नेटेड complete it टाइम मिला via आप उसमें Friday. ही काम करो, जो एंजॉयमेंट का टाइम है उसमें एंजॉयमेंट करो प्रॉपर. राइट पॉलिसी. और वो डेजिग्नेटेड टाइम भी कैसे मिलता है? जैसे अगेन जब स्प्रिंट प्लानिंग होती है, हम लोग ही तो मिलकर डिसाइड करते हैं ना यार इस वर्क आइटम को कितना टाइम मिलना चाहिए. ऐसा थोड़ी कि ऊपर किसी ने बैठ के लिख दिया है. हाँ. तो तो बेसिकली अगर कोई certainly, भी I mean, आइटम फंक्शनलिटी है, कोई फीचर है, उसका टाइम कितना लगेगा, 1 वीक लगेगा, 1 मंथ लगेगा डेवलप करने के लिए, वो आप ही लोग डिसाइड कर रहे हो, और आपके लिए पूरा फ्रीडम है कि यू वांट टू टेक इट ऑन वर्क डेज और वीकेंड्स, सो व्हाई नॉट प्रेफर वर्क डेज एंड नॉट वीकेंड्स. करेक्ट. certainly. सो आपने मेंशन करा आप ऑफिस में थे और आप ऑफिस गए थे. सो हाउ वाज दैट ऑफिस लुक लाइक? कैसा है माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब कोविड के बाद खुलेगा तब? अरे वो that's I mean that's something next to heaven for me. I mean I have never seen such a grand campus. So actually Microsoft's Hyderabad campus in which I interned is the second largest campus of Microsoft in the world after Redmond obviously. So मैं बस ऐसे बताता हूँ उसके साइज का आइडिया ना हम ऐसे लगा सकते हैं कि उस कैंपस के बीच में एक छोटा पहाड़ था. ठीक है. Okay. पहाड़ का मतलब मैं पत्थर नहीं कह रहा हूँ, सच में एक पहाड़ था. ठीक है. तो बेसिकली कैंपस And का अपना एक पेट पहाड़ है, उसने अपने लिए रख रखा है. हाँ मतलब वो बाउंड्री से कवर्ड है. ऐसा नहीं कि बस एक कोने से दिख रहा है यहाँ यहाँ जंगल है, नहीं कवर्ड है वो. एंड लेक है वहाँ पे, हमारे कैंपस के अंदर लेक है पूरी की पूरी. कैंपस के अंदर वो इफ यू वेंट टू दिल्ली वाले चिड़ियाघर गए हो तो वो गाड़ी से चलती है, व्हाट इट्स कॉल्ड, ओपन कार टाइप की चलती है. तो वो चलती रहती है पूरे दिन कैंपस में, आप बैठो और घूम सको. लिटरली 1 वीक या 10 दिन लग गया था मुझे कैंपस याद करने में. तो यूजुअली हाउ इट यूज्ड टू हैपन, मैं पूछता था ऐसे चलते हुए ना कि एक्सक्यूज मी वेयर इज बिल्डिंग 1, तो ही विल टेल मी कि यार यहाँ से जाके ऐसे लेफ्ट लेकर राइट ले लेना. दैट्स हाउ इट यूज्ड टू हैपन फॉर 1 होल वीक, इवन मोर देन अ वीक. सो एक काफी बड़ा very ट्रांजिशन grand. हाफ डे में, जहाँ आपने पूरा कॉलेज खत्म कर लिया होगा, कॉलेज एरिया, वहाँ 10 दिन लग गए आपको पूरा कैंपस देखने में. सर्टेनली. और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई मुझे बताता है कैंपस में ऐसा कुछ था एंड I'm like यार मैं कैसे मिस कर गया, अभी भी मैं नहीं देख पाया 2 महीने के बाद. सो बात करेंगे थोड़ी लग्जरीज की. तो मतलब कैंपस में बहुत बहुत सारी लग्जरीज थी, बट जो बेस्ट पार्ट था वहां से शुरू करता हूँ. नैप रूम था वहाँ पे, एक स्पेशल साउंड प्रूफ रूम था सोने के लिए. एंड आई लव्ड इट अ लॉट. मुझे बहुत मजा आता है. मतलब एक्चुअली आई एम नॉट ऑफ अ कंटिन्यूअस वर्कर, सो मैं वहाँ जाके जरूर दोपहर में एक नींद तो लेता ही लेता था. और हाँ इतना रिलैक्स फील होता था यार, घर पे नहीं आता बैठ इतना. मतलब दैट वाज टोटली अगेन टोटली साउंड प्रूफ. वहाँ जाओ. सो इसके अलावा मसाज चेयर्स होती थी. गेम्स तो मैं कहूँगा कि फुटबॉल और टीटी तो शायद मिल जाता है. हमारे यहाँ टेनिस कोर्ट था. अरे लोग फुटबॉल खेलते थे. एंड आई मीन क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे. माय मेंटर यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट, सो दैट्स हाउ आई नो. फुटबॉल खेला जाता था और मतलब ऑलमोस्ट सारे गेम्स खेलते थे दोस्त वगैरह. तो देखा है मैंने सबको खेलते हुए, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड. ऑफिस के बाद नियम है कि वो लोग खेलने बैठेंगे. जिम था, बहुत ग्रैंड जिम था ऑफिस में, शावर्स वगैरह लगे हुए हैं. एंड आई मीन इट वाज रियली वेरी ग्रेट. मैंने वीडियो कॉल किया था अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, एंड दे एक्चुअली थॉट आई वाज लिविंग इन अ 5 स्टार. अरे मैं उनको कैंपस दिखा रहा था, जो हमारी मेन बिल्डिंग है, 3rd बिल्डिंग कहलाती है वो. वहां से जब मैंने उनको दिखाया तो दे एक्चुअली डिडंट बिलीव कि आई एम नॉट इन अ होटल. तो बेसिकली काफी आने ग्रैंड की बात कैंपस, तो आप वहाँ पे काफी कुछ एंजॉय कर सकते हो. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है,
मतलब हर टाइप की, किसी को फुटबॉल खेलना, इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, किसी को आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना है वो खेल सकता है। डेफिनेटली अब कितना खेलने का भूख तो लगेगी। व्हाट वाज अबाउट द फूड? हाँ, एक्चुअली कमिंग टू द फूड। सो फूड का यार क्या होता था कि हमारी एक ऐप थी, उसमें हमें हंगर बॉक्स नाम की ऐप थी, उसमें हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते थे। ओके एंड उस क्रेडिट्स में मतलब ये है कि आपका एक टाइम का मील, वेजिटेरियन हो तो आप 1.5 टाइम खा लोगे। 1.5 टाइम मतलब एक टाइम खाना, एक बार स्नैक्स भी हो जाएगा। और ओके नॉन वेजिटेरियन का एक टाइम का खाना गारंटीड हो जाएगा। तो लंच यूज टू हैपन देयर, इवनिंग में स्नैक्स मिलते थे, दैट यूज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो मैं कैंटीन की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो कैफेटेरिया वाला पार्ट होता है, जो हर फ्लोर पे होता है, अगेन जो किचन वाला पार्ट होता है थोड़ा, जिसमें ओवन वगैरह होता है, तो उसके अंदर फ्रिज पड़ा होता था, जिसके अंदर इनफाइनाइट अमूल कूल, इनफाइनाइट कोल्ड ड्रिंक्स। आई मीन अमूल कूल तो मुझे लगता है कि मैंने रोज की 2 पी होंगी। तो हाँ, मतलब जूसेस होते थे अलग अलग टाइप के, कॉफी मशीन अगेन दैट इज प्रीटी कॉमन थिंग। इसके अलावा बहुत टाइप के शेक्स, आई मीन शेक मटेरियल रखा होता था, बहुत टाइप के पाउडर्स रखे होते थे, जो दैट यू कैन यूज हनी एंड ऑल, बट इट वाज एक्चुअली वेरी ग्रेट। एंड फ्रूट्स आते थे दिन में 3-4 बारी निकल निकल के, फ्रेश फ्रूट्स मिल फ्रूट्स रहे हैं, आते थे राइट? रखे। हाँ, वो आते थे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी ना, लोग उठा ले जाते थे। हम तो इंडियंस ही है ना, हाँ वेदर वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट। राइट। तो फ्रूट्स तो मुश्किल ही थे मिलना। फ्रूट सबको पता होता था कि हाँ ठीक है यार 11:30 बजे आएंगे, तो 11:30 बजे लोग वहाँ होते थे, वैसे फ्रूट्स गायब। सो दैट यूज्ड टू हैपन। बट या मतलब फूड वगैरह का कोई इशू नहीं था यार। इनफैक्ट काफी मजा आता था, वैरायटी इतनी थी ना कि मतलब मैं रोज मेन्यू देख के ऐसा रैंडमली सोच रहा आज ये खाऊंगा, सब कुछ ट्राई भी तो करना है। सही बात है, आज कोई नई और नई डिश ट्राई हो जाए, आज साउथ इंडियन, आज नॉर्थ इंडियन, आज कॉन्टिनेंटल। तो जब आप हैदराबाद में जाओगे ना, तो वो अगेन साउथ इंडियन इलाका है, तो नॉर्थ इंडियन फूड की थोड़ी इशू है वहाँ पे। लेकिन कैंपस में नहीं फील होगा आपको। कैंपस में यू गेट एवरीथिंग, ठीक है। स्नैक्स वाले अलग बैठे हैं, ये लोग अलग बैठे हैं, XYZ लोग अलग बैठे हैं, ड्रिंक्स वगैरह चल रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी ग्रेट पार्टी कल्चर। अच्छा, तो ऐसा होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में पार्टी तो होनी ही है, ठीक है। एंड दैट नहीं दैट यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज इंटर्न, आई गॉट अ चांस टू गो टू, आई मीन दैट वाज ऑन अ 5 स्टार। वहाँ पे ऐसे बताता हूँ कि बार ही ओपन था, लेकिन खाने को तो मैं क्या ही डिस्कस करूँ। बार ओपन था, जो करना करो। एक्चुअली इंटर्न्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ड्रिंक, बट या बार टोटली ओपन था। एंड उतने के बाद भी जस्ट इमेजिन यू हैव अ पार्टी वेन्यू वेयर यू रीच्ड आउट एंड you had drinks party and all, and Microsoft was managing for you to reach at your place. वहां से भी कैब्स उन्होंने मैनेज की हुई थी आपके लिए। अरे, सो ऑफिस मतलब आपको टेक केयर कर that रहा है एवरी पॉइंट पे। really, I mean, when I'm going for a party venue at a different place than office, why should office care? I mean, ideally that's what I'm thinking. It's part of it's responsibility of the employer to reach back to his place, but that was also taken care by office. करेक्ट। सो आई मीन ये छोटी छोटी जगह है ना यार, जहाँ पे फर्क पड़ जाता है कि दे आर एक्चुअली थिंकिंग हाँ यार हमारा एम्प्लॉय कैसे जाएगा यहाँ आया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि सबके पास गाड़ी होती है, इंटर्न आया, इंटर्न कैसे आएगा। सही बात है। सो बेसिकली इंटर्न है, 2 महीने बाद पता नहीं कंपनी में रहेगा नहीं रहेगा, बट जब 2 महीने में है तो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट आपको टेक केयर करेगा, आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगा हर चीज से, प्रॉपर आपकी पैम्परिंग से, हर तरह से आपके खाने का ध्यान रखेगा, आपकी फिटनेस का ध्यान रखेगा, आपके मेंटल फिटनेस का ध्यान रखेगा, आपके लाने ले जाने स्टेइंग का सबका ध्यान रखेगा। काफी अच्छा वर्क कल्चर है, तो काफी कुछ रियलाइज हो रहा है लाइक। इंटर्न में तो हमें होटल भी मिले हुए थे ना, एंड दैट वाज एक्चुअली दे वर एक्चुअली वेरी गुड होटल्स। आई अच्छा मीन वहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे लगता था और बहुत अच्छा था। अच्छा। So guys, with this we come to the end of this video, the part 1 of this video. We will be continuing with our exploration in the next part. Stay tuned for it, and I hope you like this video. Please share this with all of your friends, and I hope you all like this, the culture of Microsoft, and you will be applying at Microsoft. If you want to know more about the openings and different things available at Microsoft, you can ask Aman. I will put his LinkedIn profile in the description box below. Thank you guys for watching this video. Thank you. Bye bye.